Revision class 2 last time, if you remember, हमने we revised atomic structure and chemical bonding. I try to complete states of matter. उसके बाद we just look at some past paper of bonding and states of matter together. ठीक है? So देखो basic states of matter में they ask you about a general question about the properties of solid, liquid and gases, which is a particulate nature of a matter. बहुत basic early years में आप लोगों को chemistry में करवाया जाता है. ठीक है? So they ask you about the properties of solid, liquid, and gases. You should know that in solid particles are very closely packed together. They are basically they have a fixed force, a stronger force of attraction between them. They are fixed at their position and they cannot move from one place to another place. They can only vibrate, rotate, and so on. ठीक है, clear? And all solids are incompressible. Same liquid and gases. ये properties आपको बहुत general basic properties जो 8th class की science से related है, ये आपको याद होनी चाहिए. So we started this topic by revising the general properties, and then there is a solid state. अच्छा, solid state में we have basically 3 different types of solid. Either your solid is a metal, जिसको हम metallic solid कहेंगे. All ionic compounds are solid, so ionic compound हो सकता है आपका, और covalent compound हो सकता है. And the covalent compounds are divided into 2 different categories: the simple molecular compound and the giant molecular कंपाउंड. ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास 3 तरह के सॉलिड होंगे. मेटालिक कंपाउंड भी सॉलिड हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड भी सॉलिड हो सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड भी सॉलिड हो सकते हैं. ठीक है, सो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की, जनरल कैटेगरीज हैं सॉलिड की. ठीक है, अब अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के 2-3 तरीके हैं. आप कह सकते हैं ऑल आयनिक कंपाउंड्स हैव अ जायंट आयनिक स्ट्रक्चर और जायंट आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर. ठीक है, जायंट आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर ये हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. ठीक है, and they have a strong force of attraction present between positive and negative ion. ठीक है, क्लियर? अब वो आपसे पूछेगा कि why ionic compounds are solid, तो आप बोलेंगे because in ionic static force of attraction, a strong force of attraction which is called the ionic bonding. ठीक है, clear? And if you have to draw it, आप एक cube draw करेंगे and then you draw the alternate positive and negative charges. ठीक है, क्लियर? आप जितने दिल चाहें जितना कॉम्प्लिकेटेड क्यूब आप बना सकते हैं. नॉर्मली ये क्यूब बनाने के लिए कम आता है. दे नॉर्मली आस्किंग दिस क्वेश्चन इन MCQs. दे गिव यू 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उनमें से एक आयनिक होगा एंड यू हैव टू पिक देम अप. ठीक है, क्लियर? अब एक छोटी सी बात और पूछी जा सकती है. इफ दे आस्क यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक, लाइक आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. या आपको 2 आयनिक कंपाउंड देंगे, ठीक है, they give you 2 ionic compound and they ask you which of these ionic compound would have a higher melting point. इनमें से किसका melting point higher होगा? तो आप क्या करेंगे? जिसमें ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव चार्जेस होंगे उस आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर होगा. ये बात अपनी एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. देखो बेटा, आपको दिया जाएगा, लेट्स सपोज दे गिव यू NaCl, ठीक है, and MgO, and they ask you which one of these have a higher melting point. ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड. ये दोनों एक ही बात है. देखो, आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा. अब आपने क्या करना है? आपने देखना है कि भाई इन दिस वन you have Na with a +1 charge, Cl with a -1 charge. In this one you have Mg, group 2 का है 2+ charge, and you have oxygen, group 6 का है 2- charge. तो किसका आपके पास हायर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए? इसका. और इसका रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग रीजन अगर पूछा जाएगा, फोर्स ऑफ attraction between Mg2+ and O2-. ठीक है, इसका लार्जर आयनिक चार्ज है ना. चार्ज पे जो आयन पे जो चार्ज है वो लार्जर है.
ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ रही है? तो आपने बस ये देखना है जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा वो आयनिक बॉन्डिंग आपके पास स्ट्रॉन्गर होगी, उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब याद रखिएगा, नो मैटर वट एवर द आयनिक कंपाउंड दे गिव यू, कोई भी आयनिक कंपाउंड दे दे आपको, आपने यही स्ट्रक्चर बनाना है, क्यूब बना के ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस शो कर देने हैं। ठीक है, क्लियर? चाहे कोई भी आयनिक कंपाउंड वो दे देता है। क्लियर? और इसके बाद नेक्स्ट इसी टॉपिक का पार्ट है, बट वी हैव डन दिस वन इन बॉन्डिंग पार्ट में हमने कर ली थी कि ऑल आयनिक लेटिस स्ट्रक्चर या ऑल आयनिक सॉलिड स्ट्रक्चर हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, they have a crystalline structure, crystal form में होते हैं, they do not conduct electricity in a solid form because they do not contain free ions, they are soluble in water। ठीक है, क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी वैलिड होंगी। उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, मेटालिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो, अगर मैंने यहाँ एंड में नहीं किया होगा तो हम ये मेटल्स में कर लेंगे। ठीक है, मेटल्स में हमने किया है इसको, अब रिवीजन जब मेटल्स का करेंगे तो वहां पर इसको कर लेंगे। कोवलेंट कंपाउंड दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड और जाइंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल्स मेमोराइज करना हमारे लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बिकॉज देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो हम कैसे याद करेंगे? तो उसको याद करने का तरीका यह है कि हम जाइंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड की एग्जांपल्स याद कर लेंगे। ठीक है, या जाइंट कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल याद कर लेंगे, जो कि सिर्फ 3-4 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर हमें वो याद होंगी तो उनके अलावा सारे सिंपल मॉलिक्यूलर हैं, यानी डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2, ये जाइंट कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जाइंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं। इनके अलावा जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है? जिनमें टू नॉन मेटल्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, वो सारे के सारे सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इफ आई आस्क यू अबाउट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हैव अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने पढ़े ना, एल्केन, एल्कीन्स, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्केन्स के आइसोमर, ये सारे के सारे ऑल हाइड्रोकार्बन, दे आर द सिंपल कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, क्लियर? Now, simple covalent compounds have a simple molecular structure. ठीक है, ions are held together by weak intermolecular forces. Intermolecular forces दो हैं, हमने बॉन्डिंग में भी पढ़ा था। एक तो वेंडरवॉल फोर्स है और दूसरी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में होती है जिनमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होता है। बाकी किसी सारे सबके अंदर वेंडरवॉल फोर्सेस हो। तो बारी बारी पढ़ते हैं। पहले वेंडरवॉल फोर्सेस की तरफ आते हैं। बेसिकली वेंडरवॉल फोर्सेस को पिक करने का तरीका क्या है कि जो दो सिंपल कोवलेंट कंपाउंड है जिनका आपसे कंपैरिजन पूछा जा रहा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, तो आप बोलेंगे भाई जिसका MR हायर होगा, लार्जर होगा, उसी का आपके पास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्सेस MR पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, जितना ज्यादा MR होता है उतनी ज्यादा वेंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। वन लाइनर मैंने आपको दिया है, लार्जर MR, लार्जर वेंडरवॉल फोर्सेस, हायर बॉइलिंग पॉइंट। या लेट्स सपोज दे आस्क यू अबाउट CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों सिंपल मॉलिक्यूलर हैं। ठीक है, CH4 में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो आपने देखा कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपने बोला CH4 का MR 16, कार्बन डाइऑक्साइड का 44। कार्बन डाइऑक्साइड का MR ज्यादा है तो इसमें वेंडरवॉल फोर्सेस आपके पास ज्यादा होंगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, MR आप सिंपल पीरियोडिक टेबल यूज करके कैलकुलेट कर ले। ठीक है, क्लियर है ना? तो वेंडरवॉल फोर्सेस बहुत आसान है पिक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जहन में रखिएगा बेटा, और ये वाला जो एरिया है, दिस की एरिया, दिस इज बेसिकली द एरिया व्हिच यू हैव टू एम्फसाइज कि आपको उस मॉलिक्यूल में इनमें से कोई एक बॉन्ड नजर आना चाहिए। ठीक है, या तो जैसे अमोनिया है, वेरी कॉमन एग्जांपल, यू कैन सी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड है, तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, वाटर में होती है, अल्कोहल में। तो एक सिंपल सा मैं आपको 4 सब्सटेंस बता देता हूं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा होती है। ठीक है, वो 4 सब्सटेंस कौन कौन से हैं? वाटर, अमोनिया,
ऑल एल्कोहल एंड कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सो मैंने आपको एग्जांपल बताई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन जगहों पर होगी। वाटर, अमोनिया, वेरी कॉमन एग्जांपल। ठीक है, ऑल एल्कोहल, जो भी एल्कोहल हो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल कार्बो ऑक्सा। अब आप ऑर्गेनिक पढ़कर आए में बेटा, तो अल्कोहल और कार्बो ऑक्सैलिक एसिड आपको सेंस दे रहा होगा। तो दीज आर बेसिकली द कॉमन, इतनी भी आपको याद हो तो आपको काम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। ठीक है, इन सबका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। क्लियर। तो की पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग is stronger than van der Waals forces. So they have higher boiling point. ठीक है बेटा, ये की पॉइंट अबाउट सिंपल कोवलेंट कंपाउंड। तो दोबारा सुनिए, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड कार्बन सॉरी डायमंड, ग्रेफाइट और SiO2 के अलावा सारे सिंपल कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड जो है वो उनका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है या तो वैन डर वाल्स फोर्सेस के ऊपर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया में होती है, बाकी सब में वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस बेसिकली इंक्रीज होती हैं जब MR इंक्रीज होता है। ठीक है, एज MR इंक्रीजेस द वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस, और उनके इंक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और फिर सम जनरल प्रॉपर्टीज अबाउट, ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CH4N2, अभी ना वाटर है, ना अमोनिया, ना अल्कोहल है, ना कार्बो, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में नहीं है। तो मैंने तीनों का MR लिखा और मैंने देखा द हाईएस्ट MR इज कार्बन डाइऑक्साइड। हाईएस्ट MR का मतलब लार्जेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और स्मॉलेस्ट है CH4, तो इसका लोएस्ट, तो मैं अरेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है लास्ट कैटेगरी विच इज अ जायंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, जाइंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड में द फर्स्ट स्ट्रक्चर, पहली बात कि जाइंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन, दे हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड एटम्स, इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग, और ये सॉलिड होते हैं। इनको मेल्ट करने के लिए इनका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग के ऊपर। So when you have to melt them, you have to break all these covalent bond present in this complex network structure. And it is very difficult to break all these covalent bond, or the large amount of energy is required to break these type of network covalent bond. ठीक है, क्लियर है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हायर होता है। क्लियर, सही है। वो पूछेगा जाइंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड का या जायंट कोवेलेंट कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्यों हायर होता है, तो आप बोलेंगे बिकॉज एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कॉमन एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2। ठीक है, और डायमंड का स्ट्रक्चर आप सबको डिफाइन करना आना चाहिए। डायमंड का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल arrangement होता है, it has a tetrahedral arrangement। ठीक है, diamond have tetrahedral carbon atoms held together by strong covalent bond। ठीक है, ड्रॉ करना भी आना चाहिए, और अगर ड्रॉ हुआ हुआ है तो पिक करना आना चाहिए। ठीक है, in this structure each carbon atom is making 4 covalent bond and do not have any free electron। ठीक है, that's why it is a non-conductor। मैंने क्या किए, in this notes मैंने जो भी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, उस स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आता है वो भी मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, tetrahedral arrangement is very stable due to which it is very hard and rigid। ठीक है, tetrahedral arrangement की वजह से diamond hard और rigid होता है, and it is insoluble in water because all covalent compounds are insoluble in water। ठीक है, क्लियर। जो भी नॉर्मल सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड या जाइंट मॉलिक्यूल।
ठीक है जी। आई होप के प्रॉपर्टी भी याद है, सारा स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए, इतना कम से कम जितना यहाँ ड्रॉ हुआ है एज मिनिमम इतना स्ट्रक्चर। बिल्कुल जिस जैसा डायमंड का स्ट्रक्चर है द सेम इज द स्ट्रक्चर ऑफ SiO2, जिसको सिलिका सैंड SiO2 ये सब कुछ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्क ये है कि इन डायमंड यू हैव ऑल कार्बन एटम, इन SiO2 you have you have silicon and oxygen atom. So in SiO2 silicon and oxygen atoms are held together by strong covalent bonding. That's why इसका भी स्ट्रक्चर वही होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये भी हार्ड और रिजिड होता है, एंड इट इज आल्सो अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सैंड आपको पता है ना, मिट्टी से में करंट पास नहीं होता। ठीक है, क्लियर। ये बात सिर्फ की पॉइंट ये है कि जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखो जो सर्किल जो रेड से सिलिकॉन मार्क हुआ है, if you look at this silicon carefully you can see each silicon is bonded to 1 2 3 4 oxygen and each oxygen is bonded to 2 silicon। बस ये की पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हर सिलिकॉन के बाद एक ऑक्सीजन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो एक सिलिकॉन से 4 बॉन्ड निकलेंगे और वो सारे ऑक्सीजन से बॉन्डेड होंगे। एक दफा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर एंड यू शुड बी एबल टू पिक द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड SiO2। नाउ ग्रेफाइट इज एन आल्सो एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट में लेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे ये एक लेयर मैंने ड्रॉ करी है एंड एक लेयर ये ड्रॉ करी है। ठीक है, and these layers are held together by weak van der Waals forces. That's why it is soft and slippery. But in graphite, each carbon atom is bonded to how many carbon atom? 3 other carbon atom and contain 1 free electron. देखो कार्बन के outermost shell में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो अगर 3 बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया। ठीक है, and this electron can move throughout the entire layer of graphite. That's why graphite is basically a good conductor of electricity। ठीक है, clear है? I hope कि ये बात आपको। So this is the properties and structure and properties related to structure. Graphite is a layer type structure in which each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom by covalent bond. That's why they have a high melting point because atoms के दरमियान strong covalent bond present है। ठीक है, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom and have 1 free electron. That's why graphite is a good conductor of electricity. Layers are held together by weak van der Waals forces. That's why it is soft and slippery because these layers can slide over one another। ठीक है बेटा, तो आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, मेटल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ मेटल्स में हमने डिवाइड किया था कि positively charged ions surrounded by a sea of delocalized electron, they have a layer type structure। metals का भी layer type structure होता है and these layers can slide over one another। That's why आपके पास जो है वो it is malleable, ductile, ये सारी properties metals की होती हैं, तो बहुत common सी बात है। clear? So let's have a look at some questions about this bonding। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। इसने कहा कि ये तो कैटलिस्ट से रिलेटेड है। ओके, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर बोथ the ionic compound। ठीक है, describe the arrangement of the ions and the type of attractive forces between the ions in the magnesium chloride। arrangement of a ion आपको पता है कि इसका arrangement क्या होता है, cubic lattice structure होता है। ठीक है, और type of attractive forces क्या होती हैं, ionic bonding, ब्रैकेट में electrostatic भी आप लिख सकते हैं। explain why solid magnesium chloride does not conduct electricity but aqueous magnesium chloride does। तो इसका आंसर क्या होगा, because in solid magnesium chloride there is no free ions are present। ठीक है, clear? but in aqueous magnesium chloride ions are free to move। बस सिंपल से लिखना है कि सॉलिड में कोई फ्री आयंस नहीं होते लेकिन एक्वस में आपके पास आयंस फ्री होते हैं। स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। बोलो बेटा। सर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का लिख सकते हैं। हाँ, मैं समझ गया आपका। नॉर्मली याद रखिएगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी दो चीजों की वजह से कंडक्ट होती है बेटा, या तो फ्री आयंस की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बेस्ट तो ये होगा कि जब वो आपसे पूछेगा कि सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, तो आप बोलेंगे डू नॉट कंटेन एनी फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है कि व्हाई इट डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, तो आप लिखेंगे बिकॉज इन एक्वस फॉर्म
आइंस आर फ्री टू मूव, ठीक है, याद रखना। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन से, आयनिक कंपाउंड में कंडक्ट होती है फ्री आइन से, ठीक है, और ग्रेफाइट में कंडक्ट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो मेटल्स और ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन से या डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट होती है, आयनिक कंपाउंड में आइन से कंडक्ट होती है, ठीक है। स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैग्नीशियम आइन एंड क्लोराइड आइन। तो देखो भाई, मैग्नीशियम आइन है Mg2+, Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा, 2,8। इसी तरह से Cl प्रोटॉन नंबर 17 होता है, और Cl नेगेटिव में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 माइनस की वजह से 18 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा, 2,8,8। अब ये बहुत कॉमन, बहुत सिंपल, बहुत आसान से क्वेश्चन है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करके आना, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन में भी एरर करेंगे तो फिर मार्क्स आने के चांसेस नहीं है। अच्छा, वही कॉमन से क्वेश्चन उसी तरह के पूछे गए होंगे जिस तरह के क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी, कॉपर सल्फेट इज एन आयनिक केमिस्ट्री एंड बाइसॉलिड कॉपर सल्फेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप लिखेंगे बिकॉज सॉलिड कॉपर सल्फेट डू नॉट हैव एनी फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, बट इन एक्वस फॉर्म आयंस आर फ्री टू मूव। हमेशा सिंपल यही आंसर होगा कि सॉलिड आयनिक कंपाउंड में फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, एक्वस में फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, लास्ट पार्ट है, थिंक विजिबल है। सोडियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड, स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड। सोडियम Na किस ग्रुप का है, 1 का, तो Na पॉजिटिव होगा। प्रोटॉन नंबर पीरियोडिक टेबल से देखोगे 11, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बिकॉज ऑफ +1 चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो आप 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, विच इज 2,8। क्लियर। इन अ सिमिलर वे ऑक्साइड, याद रखना ऑक्साइड हमेशा ऑक्सीजन विद 2 माइनस, O विद 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रोटॉन नंबर 8 और चार्ज 2 माइनस, क्योंकि ये ग्रुप 6 का है, ऑल ग्रुप 6 हैव अ चार्ज ऑफ 2 माइनस, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताकर आया। तो इसके ऊपर जो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 ही होगी, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ 2,8 लिखेंगे और यहाँ भी 2,8 लिखेंगे। एक्सप्लेन हाउ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, बिकॉज फ्री आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है ना। मोल्टन क्या कहता है, फ्री आयंस प्रेजेंट है। देखिए बिल्कुल वैसे ही सिंपल से क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आ गया है। तो यस, आयनिक कंपाउंड के साथ हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस मिक्स होकर आ सकता है, क्लियर। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइंस की बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। कैल्शियम आइन, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम आइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा रही है। कैल्शियम लिखा आपने, आपने सोचा किस ग्रुप का है, पीरियोडिक टेबल देखा तो ग्रुप 2 नजर आया, तो इसका मतलब दिस इज अ मेटल विद अ चार्ज ऑफ 2+, ठीक है। और कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर होता है 20 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,8। इन अ सिमिलर वे क्लोराइड अभी हम करके आए, उसकी भी 2,8,8। अब ये दोनों कॉमन अक्सर केसेस में, ये क्योंकि सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मेजर केसेस आर सेम। तो इनसे घबराना नहीं कि भाई एक जैसा आंसर कैसे हो सकता है, बिल्कुल है, और बार बार है, मैं आपको बार बार दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। व्हेन मोल्टन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज, कैल्शियम एंड क्लोराइड आर फॉर्म, कैल्शियम एंड क्लोरीन आर फॉर्म, जस्ट एन इक्वेशन फॉर द 2 इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है। एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाई कैल्शियम 2+ जाएगा, और मोल्टन है तो लिक्विड फॉर्म में लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम सॉलिड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ Cl नेगेटिव लिक्विड जाएगा, ठीक है, और Cl2 गैस बनाएगा। टू बैलेंस दिस हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा एंड इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बहुत कॉमन सी इक्वेशन है। मोल्टन अभी हम इलेक्ट्रोलिसिस जब रिवाइज करेंगे तो दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब कॉन्सेंट्रेटेड है, आपको पता होना चाहिए कैल्शियम और H पॉजिटिव में से H पॉजिटिव का ईज ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा है, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एंड एज दिस इज अ केस ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड, तो सेकंड आपके पास हो जाएगा Cl2 गैस। तो कॉन्सेंट्रेटेड के केस में Cl2 गैस एंड, क्लियर,
Explain the idea about the structure in bonding by calcium chloride as high melting point. अब वो आ गया हमारा ionic bonding. तो आप लिखेंगे कि in solid calcium chloride is an ionic compound in which Ca2 plus and Cl negative ions are held together by a strong ionic bonding in a cubical structure. मैं लिख देता हूँ इसका आंसर. CaCl2 is an ionic compound in which Ca2 plus and Cl negative ions are held together by strong ionic bonds in a cubic structure. So they have high melting point. Okay? Clear? So that's the always answer whenever they ask you about any ionic compound, why this ionic compound have a high melt. हाँ, अगर comparison पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, तो आप बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड में ज्यादा स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्डिंग होगी बिकॉज यू हैव मोर पॉजिटिव एंड मोर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट. ठीक है. उसने कहा हाइड्रोजन फ्लोराइड HF हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है. इट इज soluble in water. Magnesium reacts with fluorine to make an ionic compound of magnesium fluoride. Magnesium fluoride MgF2. जैसे MgCl2 होता है वैसे MgF2. Predict two properties of magnesium. High melting point. ठीक है. High melting point. पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? Solid. यहीं पे लिखना हाई, इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं आप. ठीक है. हाई मेल्टिंग पॉइंट. क्लियर. और दूसरी सॉलेबल इन वाटर. सॉलिबिलिटी आपको पता है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी है. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ मैग्नीशियम एटम रिएक्ट विद फ्लोरीन F2 मैग्नीशियम आयन एंड फ्लोराइड आयन. ठीक है. अब मैग्नीशियम आयन क्या है बेटा? Mg2 प्लस और फ्लोराइड क्या है? F1 माइनस. दो फ्लोराइड आयन है ना. ठीक है. तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम releases 2 electrons to make Mg2 plus. ठीक है. And these 2 electrons are gained by 2 fluorine to make F1 minus. ठीक है. Explain in terms of electron how magnesium atom reacts with, ठीक है, fluorine to make a magnesium ion and a fluoride. Now आप बोलेंगे magnesium releases 2 electrons to make Mg2 plus ion. ठीक है. And these 2 electrons are gained by 2 fluorine atoms to make 2 F negative ions. ठीक है बेटा. सिर्फ आयन फॉर्म, आयनिक कंपाउंड नहीं, सिर्फ आयन फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आयन किस तरह से फॉर्म हुए. ठीक है. क्लियर. अच्छा. होपफुली अब आप ये सारे हमेशा जो है वो इसे एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. देखो हाउ मैग्नीशियम एटम रिएक्ट्स विद सल्फर एटम. अब आपको ये पता होना चाहिए कि सल्फर पे चार्ज कितना है. तो आप क्या करोगे? मैग्नीशियम 2 प्लस होता है. सल्फर कैसे पता चलेगा सल्फर पे चार्ज कितना है? तो आप पीरियोडिक टेबल में सल्फर को ढूंढेंगे. जब आप सल्फर को ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा सल्फर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 6 में है. 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे. तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इस पे चार्ज क्या आएगा? 2 माइनस का. सारे ग्रुप 6 पे -2 चार्ज होता है. ग्रुप 5 पे -3 चार्ज एंड ग्रुप 1 हैव अ चार्ज ऑफ 1 माइनस. ठीक है. अब ये बातें आपको याद होनी चाहिए. क्लियर.
तो आप बता देंगे बिल्कुल वही बात क्या मैग्नीशियम, वन मैग्नीशियम रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, दिस 2 इलेक्ट्रॉन गेन बाय वन सल्फर एटम टू मेक सल्फर 2 माइनस। ठीक है, क्लियर? ओके, ये थोड़ा सा देख लेते हैं लिखने में। और पॉजिटिव आइन पोटेशियम पॉजिटिव है, ठीक है, और नेगेटिव आइन आपके पास कौन सा है जनाब? सल्फर 2 माइनस, ऐसे ही है ना? पोटेशियम सल्फाइड है ना? हाँ, पोटेशियम सल्फाइड है। पोटेशियम ग्रुप 1 का है, सल्फर ग्रुप 6 का है, तो मैंने इसलिए चार्जेस लगा दिए। पोटेशियम का प्रोटॉन नंबर 19 है, सल्फर का 16 है। अब 19 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचा? 2,8,8 18 इलेक्ट्रॉन बचे। इसी तरह सल्फर 16 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद भी इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, क्लियर? सही है जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ कोवलेंट बोलो बेटा। सर आपने बोला था कैलकुलेटर इन्वर्टर की डिस्कशन करेंगे। दोबारा बोलो तुम्हारा, और अपना थोड़ा सा माइक करीब करो। सर आपने बोला था कैलकुलेटर इन्वर्टर की डिस्कशन करेंगे। कैटालाइटिक कन्वर्टर, कैलकुलेटर इन्वर्टर की डिस्कशन करेंगे उसके रिएक्शन। हाँ हाँ, वो environment अभी आएगा ना बेटा, नाइट्रोजन एंड सल्फर में होगा वो। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें नाइट्रोजन सल्फर में होती है ना, बिल्कुल आपको कराऊंगा। सही है। अच्छा जनाब, आयनिक कंपाउंड वाले ही सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन है सिंपल से, अब कोवलेंट पे आ जाते हैं, ताकि ये देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही बॉन्डिंग रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन पूछ रहा है, लेकिन वही कंपैरिजन जिसकी मैं बात कर रहा था बेटा, वो यहाँ पूछा जाएगा। वो फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयन, तो मैग्नीशियम 2 प्लस ऑक्साइड 2 माइनस, सजेस्ट व्हाई मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ मच हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम क्लोराइड। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड में +2 और -2 चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, आप लिखेंगे इन मैग्नीशियम ऑक्साइड देयर इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन +1 and +2 and -2 charges, whereas in sodium chloride it's weaker force of attraction between +1 and -1 charges। ठीक है, क्लियर? +2 और -2 की जगह Mg2+ और O2- भी लिख सकते हैं, +1 और -1 की जगह Na+1 और Cl1- भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों यहाँ पर आंसर आएंगे। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम पूछ रहा है आपके पास, फॉस्फीन, draw the dot and cross diagram of the phosphine, show only the outermost electron, phosphine is pH3। ठीक है, pH3, क्लियर? तो अब कैसे पता चलेगा इसकी डॉट एंड क्रॉस कैसे बनेगी? देखो P जो है इसको देखो किस ग्रुप का है, ये ग्रुप 5 का है पीरियोडिक टेबल के, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या किया? आपने फॉस्फोरस बनाया, अब कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है? 3 हाइड्रोजन के साथ, तो आपने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना दिए। ठीक है, अब कितने बचे? 5 में से 3 तो यूज हो गए, एक पेयर बचा, वो पेयर आपने ऊपर बना दिया। इतनी सिंपल सी इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है। ठीक है, क्लियर? तो आपको जो भी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जैसे H2O में एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, पता लगाओ किस ग्रुप का है, कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बचे। फॉस्फोरस है, अगर मैं आपसे बोलूं PCl5 की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है, फॉस्फोरस किसका है? ग्रुप 5 का, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, और 5 क्लोरीन के साथ ही ये बॉन्डिंग कर रहा है, तो मैंने फॉस्फोरस लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 क्लोरीन के साथ इसकी बना दी कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 में से एक तो बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गया, कितने बचेंगे? 6, तो बाकी के 6 पेयर फॉर्म में आप क्लोरीन के अराउंड, सारे क्लोरीन के अराउंड बना देंगे। ठीक है, इस तरह की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना, बस सेंट्रल एटम का पता चल रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यू कैन इजीली ड्रॉ दिस डॉट। इस तरह का, जैसे ये है ना PH3 टाइप मॉलिक्यूल, इसी तरह इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे CH4 पूछा जा सकता है, C2S6 C3S
PH4 इस तरह के मॉलिक्यूल आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, ये देखिए इसमें भी ये बोल रहा है, इट्स सेइंग phosphine is formed when water reacts with calcium phosphide, Ca. Calcium phosphide is an ionic compound. Write the formula of the phosphidine. ठीक है, phosphidine का फॉर्मूला लिखना है। कैसे पता चलेगा? फॉस्फोरस पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप का है? ग्रुप 5 का, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद फॉस्फाइडाइन पे चार्ज कितना आएगा? 3 माइनस। ठीक है, ग्रुप 5 का है तो 3 माइनस का चार्ज होगा, जैसे नाइट्रोजन पे होता है। प्रेडिक्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते हो और soluble in water। ठीक है, वाई? क्योंकि उसने ऊपर ही बता दिया है कि ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड की कोई भी एक प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? अच्छा, कोवलेंट में भी डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, सिर्फ डॉट एंड क्रॉस ही पूछी जाती है ज्यादातर, या फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी। तो उसने बता दिया P4 सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दीजिए। आप बता दीजिए लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और दूसरी बता दो इनसॉल्युबल इन वाटर या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी दिल चाह रहा है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन, उसने कहा सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल फाउंड इन ग्रुप 4। सिलिकॉन नॉन मेटल है, ग्रुप 4 का है, पीरियोडिक टेबल पे जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो अब आप SiO2 की दो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है ना? यही प्रॉपर्टीज होती हैं। SiH4, Si की बात करते हैं। Si ग्रुप 4 का है, तो Si के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4, क्योंकि ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्लियर? कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है? 4 हाइड्रोजन के साथ, तो 1 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बाद तो एक ही होता है, ठीक है, 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन। बिल्कुल वैसे ही आराम से सिंपल डॉट एंड क्रॉस लाजमी आएगी एक ना एक मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको टेक्निक पता हो। सेंट्रल एटम जैसे सिलिकॉन है, ग्रुप पता लगाया, उसके इलेक्ट्रॉन लिख के जितने बॉन्ड बना रहे हो उतने बॉन्ड बनाए, दैट्स इट। डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात या तो ऑर्गेनिक में आती है, या एक स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड और जिसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड आपके पास होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्लियर? तो इसी तरह SO2 में भी होता है। बस इन दो चीजों को, सल्फर भी कार्बन भी उसी ग्रुप से बिलोंग करता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड फिलहाल याद रखिएगा, SO2 का थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब वो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम किसकी पूछ रहा है? ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, कॉपर सल्फेट की नहीं पूछ रहा, O2 की पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन किस ग्रुप का है? 6 ग्रुप का ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हर दोनों ऑक्सीजन के एक इसका डॉट क्रॉस ऑक्सीजन क्रॉस डॉट ऑक्सीजन। ठीक है, आपने डबल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। अब आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, हर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गए, तो उसके बाद कितने बचे? 6 में से 4। इसके बाद कितने बचे? 4। वो 4 आप पेयर फॉर्म में ड्रॉ कर दीजिए। अब देखो दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना। क्लियर? ऑक्सीजन के अलावा आपको डॉटेड क्रॉस नाइट्रोजन, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन की भी बनानी आनी चाहिए। नाइट्रोजन ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो इससे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? नाइट्रोजन 1 2 3, ठीक है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। एंड आफ्टर यूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का बच जाता है। ठीक है, सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह के सिंपल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर हैं, देख लीजिए। SiO2 से रिलेटेड स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ सिलिकॉन 4 क्लोराइड। ठीक है, सिलिकॉन 4 क्लोराइड, यानी सिलिकॉन पे चार्ज कितना है? 4 प्लस, 4 का मतलब 4 प्लस चार्ज है। और क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है? 1 माइनस। अब अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सिलिकॉन 4 क्लोराइड का फॉर्मूला बनाएंगे, तो क्या बनेगा? Si के साथ 1 आ जाएगा और Cl के साथ आ जाएगा 4। ठीक है, अब डॉट एंड क्रॉस कैसे बनाए? सिलिकॉन सिलिकॉन बिलोंग करता है,
ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, लॉजिक समझ में आ रही है ना? मैंने सेंट्रल एटम यानी सिलिकॉन जो अकेला है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके ग्रुप नंबर से पता लगा दिया। मैंने सिलिकॉन लिखा, ठीक है, और मैंने सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन क्रॉस फॉर्म में इसके साथ लिखे। कितने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है? 4 क्लोरीन के साथ। तो चारों साइड पर एक एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन का बना दिया, ठीक है, क्लियर? अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गया, तो कितने बाकी बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ईच क्लोरीन के आपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। याद रखना, हेलोजन यानी क्लोरीन या ब्रोमीन जब भी होगा तो आपने उसके, और इसने कहा था सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करें, तो हमने सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए, ठीक है, लिखा हुआ है ना आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ड्रॉ। सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ SiCl4। लॉजिक पता चल गई किस तरह बनाना, बिल्कुल ऐसे ही हमेशा बनाएगा। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई SiO2 हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आप लिखेंगे SiO2 हैव अ जायंट covalent structure in which silicon and oxygen atoms are held together by strong covalent bonds. So they have a very high melting point. ठीक है बेटा, क्लियर? आगे देखें डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अब मैं डॉट एंड क्रॉस पे इसलिए फोकस करूंगा, मोर लेस इन्हीं में से कोई एग्जांपल आपसे पूछी जाएगी। अच्छा, एल्युमिनियम मेटल एंड आयोडीन इज अ नॉन मेटल। आयोडीन एंड ब्रोमीन आर नॉन मेटल, यस, ठीक है। आयोडीन एंड ब्रोमीन फॉर्म द कंपाउंड आयोडीन ब्रोमाइड, IBr, ठीक है, क्लियर? डॉट एंड क्रॉस का डायग्राम IBr की ड्रॉ करनी है। अब देखो आयोडीन ग्रुप 7 का, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन ग्रुप 7 का आउटर मोस्ट शेल में 7, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट कंप्लीट। तो इसका मतलब दोनों के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो आपने I लिखा, ठीक है, डॉट क्रॉस Br। I के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गया, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में बना देंगे, सिमिलर वे ब्रोमीन के पेयर फॉर्म में, ठीक है। तो देखो IBr हो, Cl2 हो, Br2 हो, F2 हो, F2 नहीं, Br2 हो, I2 हो, इन सब की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बिल्कुल इसी तरह बन गया। अब Cl2 है तो 2 क्लोरीन की जगह एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर? सो दिस इज हाउ you have to draw a dot and cross diagram of these type of molecule. Simple structure, simple dot and cross diagram सिंपल होती है, लेकिन आप लोग उसमें अक्सर गलतियां कर देते हैं। देखो ClO2 की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपसे पूछ रहा है, आप कैसे करेंगे? Cl2O की, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, ठीक है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैंने एक ऑक्सीजन लिखा। अब आप देखें 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो मैंने 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो मैंने एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन के साथ यहां दिखाया, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन के साथ यहाँ, क्योंकि क्लोरीन को एक बॉन्ड बनाने हैं 8 कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने, हो गए। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 में से 2 बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो कितने बचे? 4। मैंने 4 पेयर फॉर्म। क्लोरीन में 7 थे, तो हर क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बाकी बच गए, ठीक है बेटा। सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ Cl2O, ठीक है। एक्सप्लेन यूजिंग द आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर व्हाई Cl2 अब लो, आप लिखेंगे लो कोवेलेंट कंपाउंड है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, तो आप बोलेंगे Cl2 हैव अ सिंपल कोवेलेंट, सिंपल मॉलिक्यूलर या सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर in which Cl2 molecules are held together by weak van der Waals forces, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाएगा किसी सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड का कि स्ट्रक्चर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है, तो आप लिखेंगे ये आंसर लिखेंगे, Cl2 have a simple
covalent structure in which molecules are held together by weak van der Waals forces. So it has low melting point. ठीक है बेटा, जाइंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हायर क्यों होता है? उसका आंसर ये है, कॉमन है, कोई भी जाइंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड पूछे, यू हैव टू राइट डाउन दिस आंसर. ठीक है, क्लियर. सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर, मेल्टिंग पॉइंट लोअर क्यों होता है? दिस इज द आंसर. एनी एग्जांपल, अब वो एग्जांपल चेंज करके पूछेगा, बट कोई तो बी द सेम. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, सिंपल सी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है वाटर की. ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन. अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. आउट ऑफ 6 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन अ बॉन्डिंग, तो 4 बाकी बच जाएंगे. ठीक है, अब ये सिंपल सी है बेटा. वाटर, अमोनिया की भी याद कर लीजिएगा. ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है, चांसेस कम ही होते हैं कॉमन एग्जांपल्स आने के, लेकिन आ सकते हैं. ठीक है, तो इसको कोई चांस हम नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, अब NH3 के बजाय अगर वो आपसे NCl3 पूछता है, इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग. ठीक है, सिर्फ आपने क्लोरीन के मजीद 6 इलेक्ट्रॉन और बना देने, जो हमेशा हम बनाते हैं जब आपके पास हैलोजन होता है. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. व्हाई दिस फॉर्मूला ऑफ द प्योर सैंड, तो SiO2 होता है सैंड का फॉर्मूला, बार बार हम लिख चुके हैं. हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग, अभी हम करके आए. बिकॉज डू नॉट हैव, व्हाई डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन प्रेजेंट. ठीक है, क्लियर. आयनिक कंपाउंड का डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट हैव फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन. तो देखो बार बार एक ही चीज आपसे पूछी जा रही है. ठीक है, व्हाई दिस हार्ड क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट हैज अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो हार्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्टेबल टेट्राहेड्रल arrangement of atoms. ठीक है, no free electrons or free ions. ठीक है, क्लियर. डिड्यूस द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ पोलोडियम. पोलोडियम बना दिया उन्होंने, बोला एम्पेरिकल फॉर्मूला बताए. तो भाई क्लोरीन क्या है? ये है, तो ये सारे Cl है. ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी Cl आपके पास 12 है. प्लोडियम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. प्लोडियम आपके पास विच इज Pd6 है. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? जब आप 6 कॉमन ले लेंगे तो एम्पेरिकल बचेगा PdCl2. ठीक है ना, नॉर्मल क्या बन रहा था? Pd6Cl12. अब ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, एम्पेरिकल कैसे बनेगा? इन दोनों में से जो भी नंबर आप कॉमन ले सकते हैं. तो आई कैन टेक 6 कॉमन, 6 कॉमन लेने के बाद PdCl2. दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो. ठीक है, क्लियर. डायमंड से रिलेटेड, बाय डायमंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, वही सेम जो SiO2 का आंसर लिखा है वही इसका लिखेंगे. ठीक है, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग. बाय नॉर्मल डायमंड डू नॉट कंडक्ट, नो इलेक्ट्रॉन. तो आपको नजर आ रहा है कि कॉमन से क्वेश्चन है. तो आई बी डन विद एटॉमिक स्ट्रक्चर, I'll be done with bonding and states of matter. I'm just keeping it till here. और इन्हीं टॉपिक को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, and then I'll revise some more topic tomorrow, inshallah. ठीक है, कल या परसों जब भी हमें टाइम मिलता है. Any question you can ask.